स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए नीचे मेरा नंबर 9690653773 दिया गया है। इस पर अपनी क्वेरीज को आप भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चैप्टर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैसेज कि इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आप ठान लेते हो किसी काम को करना तो 100% वो काम सक्सेस रूप से हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन। यू बिगेन योर स्टडी ऑफ नंबर्स बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। द नंबर यूज्ड फॉर दिस पर्पस वेयर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर अ नेचुरल नंबर. They are 1, 2, 3, 4 and so on. By including 0 to the natural number, we got the whole number, that is 0, 1, 2, 3. The negative of natural number are there put together with whole number to make up integers. Integers are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. We thus extended the number system from the natural numbers to whole number and from whole number to integers. These are numbers of the form numerator and denominator. Now students, what are rational numbers? Rational number क्या है? A rational number is defined as a number that can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Numerator and denominator. In P upon Q, the integers P is the numerator and integers Q not equal to 0 is the denominator. Thus, in -3 upon 7, the numerator is -3 and denominator is 7. Mention 5 rational number, each of whose numerator is negative integers and denominator is positive integer. Numerator is a positive integer and denominator is a negative integer. Numerator and denominator both are negative integer and numerator and denominator both are positive integer. Are integers also rational numbers? Any integers can be thought of the rational number. For example, the integer -5 is a rational number because you can write it as -5 upon 1. The integer 0 can also be written as 0, 0 upon 2 or 0 upon 7, etc. Hence, it is also a rational number. Thus, the rational number includes integers and fraction. Now, students, equivalent rational number. By multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integers, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. This is exactly like obtain equivalent fraction. Positive and negative rational number. Consider the rational number 2 upon 3. Both the numerator and denominator of this number are positive integer. Such a rational number is called a positive rational number. So 3 upon 8, 5 upon 7, 2 upon 9, etc. are positive rational number. The numerator of -3 upon 5 is a negative integer, whereas the denominator is positive integer. Such a rational number is called a negative rational number. So -5 upon 7, -3 upon 8, -9 upon 5, etc. and negative rational number. Now students, rational number in standard form. A rational number is said to be a standard form if its denominator is a positive integer and numerator and denominator have no common factor other than 1. First, list the 5 rational number between -1 and 0. तो -5 rational number के हमने बनाने के लिए हमने इसमें जो है there is a 5 rational number is -1 upon 10, -1 upon 20, -1 upon 30, -1 upon 40, -1 upon 50. This is the 5 rational number. स्टूडेंट्स, इसमें एक और काम भी आप कर सकते हैं। अगर 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप उससे एक ज्यादा यानी कि 6 का हम पहले इंटीजर्स में हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद 5 नंबर तक की काउंटिंग को रेशनल नंबर के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो -5 upon 5, तो -5 के बाद जो है -4 upon 5, -3 upon 5, -4 upon 5, -2 upon 5, -1 upon 5, तो ये सारे नंबर भी हमारे जो है रेशनल नंबर होंगे। बस इस नंबर में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें फाइंड करना है तो 5 रेशनल में निकालने हैं तो एक ज्यादा, क्योंकि हमने 5 किया तो एक कम मिलते हैं, तो एक ज्यादा 5 + 1 दैट इज 6। तो 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम उसके आगे की काउंटिंग को पूरा कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे -2 एंड -1 दिया गया है तो -2 में हम जो है -6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो -12 upon 6 एंड
-6/6, तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। Here is the थर्ड नंबर। फर्स्ट हम इसको जो है इक्विवेलेंट बना लेते हैं, यानी कि एक समान बना लेते हैं डिनोमिनेटर का। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, और तो here is get -36/45, एंड सेकेंड वाले में भी जो है 15 से मल्टीप्लाई करते हैं -30/45। अब हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45। फोर्थ, here is -1/2 प्लस एंड 2/3, तो 2 3 का एलसीएम लेंगे हम 6। हमें जो है 5 का मल्टीप्लाई, 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, तो दिस इज द 18। So here is the multiply 18, numerator and denominator, get 18/36, and 2/3 में हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 24/36। अब इसके बाद 5 की काउंटिंग 19, 20, 21, 22, 23 हम काउंटिंग करके रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न में देखिए हमारे पास 3/5 है, तो 6/10 है, 9/15 है, 12/20 है। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर हमारा 2 का फर्स्ट नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके आया है, थर्ड नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके आया है, फोर्थ नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे करके आया है। तो 5 रेशनल नंबर हम जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15/25, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18/30, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21/35, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24/40। एंड सेकेंड में भी हम वही सेम चीज देख रहे हैं। तो हम जो है इसके नेक्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हम जो है पहले टर्म में -1/4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गेट -4/16। 5 से मल्टीप्लाई किया, -5/20, 6 से मल्टीप्लाई किया, -6/24, 7 से मल्टीप्लाई किया, -7/28। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड है, यहां भी हमारे पास वही चीज है, -1/6 है, तो हमें नेक्स्ट निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/-30, 6/-30, 7/-42 एंड 8/-48। ऐसे ही फोर्थ वाला पोर्शन है -2/3, तो -2/3 में हमने जो है मल्टीप्लाई किया गया है 2 से एंड 3 से, तो नेक्स्ट निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गेट 8/24 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/50, -15, 6 से करेंगे 12/-18 एंड 7 से करेंगे 14/-21। गिवन 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, तो पहले हम रेशनल नंबर निकालना है। तो इस रेशनल नंबर में 1 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड, 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थर्ड, 4 से और 5 से क्रमशः मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35। ऐसे ही सेकंड में 2 से, 3 से, 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके हम जो है 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट, 10/-6, 15/-9, 20/-12 एंड 25/-50। थर्ड नंबर में भी हम वैसे ही 2 से, 3, 4 एंड 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके अलग अलग रेशनल नंबर निकालेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर 8/18, 12/27, 16/36 एंड 20/45। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि ड्रॉ द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। तो हमारे पास जो है 3/4 रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर हमारे पास जो है हमने 3/4 को इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाया है, और इसमें जो है हमारे पास वैल्यू दी गई है, और उसके बाद सेकेंड नंबर को -5/8 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद 7/4 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, और 7/8 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और आप काम कर सकते हैं, हम पहले नंबर लाइन को पॉजिटिव और निगेटिव क्रम में बना लेते हैं। फ्रैक्शन के बाई में जैसे मान लीजिए पहला पार्ट है 3/4, तो हमने जो है पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 हमने नंबर लाइन पे बना लिए, और सभी के बाई में हम 4 4 लिख देते हैं, तो 1/4, 2/4, 3/4, तो हम सीधे सीधे भी हम 3/4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली 5/8, सिमिलरली 7/4, सिमिलरली 7/8 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Next students, the number here point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SQ and AP is equal to PQ and QB. Name the rational number represented by the PQ, R and S. Here is a
Students, first distance between U and T is 1 unit. It is divided into 3 equal parts. TR, RS, SU is 1 upon 3. R is equal to minus 4 upon 3. S equal to minus 5 upon 3. Similarly, AB is equal to 1 unit. It is divided into 3 equal parts. P is equal to 7 upon 3 and Q is equal to 8 upon 3. नाउ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से पेयर जो है सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है। -7/21 और 3/9। तो हमने जो है दोनों को सॉल्व किया, 3/9 को 1/3, तो -1/3 नॉट इक्वल टू 1/3, ये सेम रिप्रेजेंट नहीं करते। सेकेंड पार्ट 16/20 माइनस का -4/5 और 20/25, ये भी जो है हमारे पास जो है 20/25, यहाँ माइनस नहीं है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक है। सो स्टूडेंट्स, ये भी हमारा जो है 4/5 होता, पॉजिटिव और निगेटिव हमारे दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो ये भी, क्योंकि दोनों हमारे जो है पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट्स, तो बोथ आर इक्वल। सॉरी, थर्ड, यस -2/3 एंड 2/3, -2/3 भी 2/3 होता है और 2/3 हमारा दिया गया। थर्ड इज अ इक्वल फ्रिक्शन। फोर्थ, -3/5 and here is the -3 से 3 4 जा 12 and here is the, and हम या इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो डिवाइडेड 4, तो -3/5 and -3/5 is equal to -3/5 minus fourth portion is equal fraction. फिफ्थ, 8/5 24/15, 8/5 है, 24/5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 15 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, गेट हमारे पास 8/5। तो हम एक जो है पॉजिटिव 8/5 और निगेटिव 8/5 दोनों जो है हमारे, एक बार फिर से फिफ्थ नंबर को देखें, कुछ आंसर में और क्वेश्चन में कुछ टैली नहीं हो रहा है, स्टूडेंट को साइन की मिस्टेक लग रही है। 8/5 एंड 24/15 दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर आएगी। इसके बाद यार 6th portion 1/3 and 1/9, these वैल्यू आर नॉट इक्वल। 7th portion 5/9, 5/9 दोनों जो है इक्वल फ्रैक्शन है। -2/3 और 2/3, यहां पर हमारे पास 7 के बाद 8th पोर्शन नहीं है, सो ये हमारे पास इक्वल फ्रैक्शन है। एक और तरीका काम कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जैसे फर्स्ट वाले में 7/21 है, 3/9 है, तो 7 में मल्टीप्लाई करें 9 से और हमारे पास 21 में मल्टीप्लाई करें 3 से, तो अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो दे फ्रैक्शन आर सेम, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो फ्रैक्शन आर नॉट सेम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने अपनी इस वीडियो में आपको भरसक समझाने का प्रयास किया है, लेकिन जो है क्लास टीचिंग और वीडियो में अंतर होता है, तो स्टूडेंट्स अगर इस बीच में कहीं भी इस वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे, जो करेक्ट होगा उस वैल्यू को आप लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 8/6 इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो 8/6 हमारा दिया गया है और आंसर देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में माइनस साइन होता तो ये आंसर हमारा सही था, तो अगर पॉजिटिव है तो हम 4/3 लिख सकते हैं। 25/45 5/9, 44/72 11/18, 8/10 माइनस यानी कि 4/5, और साइन अगर क्वेश्चन में माइनस का है तो माइनस लगा लेंगे, प्लस साइन है तो पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। फिल इन द बॉक्सेस विच द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पोर्शन -5/7, तो एलसीएम लेंगे, -5 into 3/7 into 3 -15/21, 2/3, 2 into 7/3 into 7 14/21, फिर -15 इज लेस देन 14, लेस देन का साइन लगेगा। सेकेंड में हमने इसको 4/5 माइनस का है, हमने 7 से मल्टीप्लाई किया -28/35 एंड -5/7 में 5 से मल्टीप्लाई किया -25/35, तो दिख रहा है -28 इज लेस देन -25, सो -4/5 इज लेस देन -5/7। थर्ड, 14/16, that is a 7 into 2/-8 into 2, that is a 7/-8 is equal to -7/8, and -7/8 equal to 14/16, so there is equal to का साइन। फोर्थ, -8/5 है, -32/20, -7/4 है, -35/20, -32 is greater than -35, so -8/5 is greater than -7/4। फिफ्थ, -1/3 is -4/12 हो जाएगा, -1/4 -3/12 हो गया, एंड -4 is less than -3, that is -1/3 is less than -1/4।
सिक्स्थ पोर्शन है -5/11 और -5/11 दोनों इक्वल है एंड 0 इज ग्रेटर देन -7/6। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ग्रेटर इन द फॉलोइंग, इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर है। हमको एलसीएम लेंगे, जो हमारा जिसका डिनोमिनेटर 3 है उसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिसका डिनोमिनेटर 2 है उसमें 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं 4/6 और 15/6, सो 15 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 5/2 इज ग्रेटर। सेकेंड पोर्शन है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं -5 इज ग्रेटर देन -8, -5/6 इज ग्रेटर। थर्ड पोर्शन है -3/4 और 2/-3, हमने जो है -9/12, -8/12, -9 इज लेस देन -8, सो -2/3 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है -4/4 और 1/4, नेगेटिव साइन हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, सो 1/4 इसमें बड़ा होगा। एंड फिफ्थ पोर्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, -23/7, -19/5। So students, here is the get -115/35 and -133/35. -115 is greater than -133, so -3 whole 2/7 is greater. 10 क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हियर इज द, दिस इज द वैल्यू दिया गया है, हम इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो -3 इज लेस देन -2 इज लेस देन -1, इस ऑर्डर में लिख लेंगे। एंड इज द बाय कन्वर्टिंग दीज टू लाइक फ्रैक्शन, एंड हियर इज द, हम सबको एलसीएम लेकर के सबको इक्वल करेंगे। और सो स्टूडेंट्स वेट फ्यू सेकेंड। सो in this question, second part, here is 393 -1/3 and 2/9 and 4/3। तो इन सबको हमने कन्वर्ट करके लाइक फ्रैक्शन में, और इसके बाद जो है -3/9 -2/9 -12/9, गेट -12 is less than -3 less than -2, so -4/3 is less than -1/3 is less than -2/9। Third portion 3/7 and 3/2 and 3/4, converting the like fraction and get -12/28 -42/28 -21/28. So -42 is less than -21 is less than -12. So -3/2 is less than -3/4 less than -3/7. So students, आपने हमारे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड आपने जो है अपने घर पर रह करके आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बी हैप्पी, थैंक यू।